what do you want to become? Yeah. So you say engineer, doctor, there will be like 2 or 3 things. Once, right, like just as crazy as it sounds, once I had heard about the word entrepreneur. I had no idea what it was. It was just a different thing. So I started saying after that कि मुझे entrepreneur बनना है. 24 की एज में इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर और पूरे वर्ल्ड में भी अमंग यंगेस्ट बिलियनियर की लिस्ट में रितेश अग्रवाल का नाम आता है. The winner, of course, ladies and gentlemen, for the startup of the year is Oyo Room. Life presents you with 2 opportunities or 2 options at all points of times, but just 2. Either a risk or, on the other hand, regret. I have learned always that whenever life presents you with either of these opportunities, taking a risk is always better than regretting not taking that risk many years from now. 2020 में फोर्ब्स ने रितेश की नेटवर्थ $1.1 बिलियन एस्टिमेट की थी और हम सब भी रितेश को एक ही कंपनी की वजह से जानते हैं. बट ये सब इतना भी इजी नहीं था. I grew up in a town called Raigada. This is in the Andhra Odisha border. I went to Kota, Rajasthan for my 11th and 12th grade education. Okay. It was partly because I wanted to pursue engineering. So, but for me, I just wanted to be closer to cities where new businesses were getting built or something new was happening, because I wanted to be a part of this story. I didn't know what I'll do, why I'll do, and this idea got started because I started selling telecom SIM cards when I was in my 6th or 7th grade. So that got me thinking that ye bada acha hai. I want to do more and more of these things. I think that sort of inspired me to come to Kota. I think right after 12th grade, there's 6 months between school and university. I was naive enough to think I should start a business of my own. और ये वही टाइम था जब रितेश के पास एक आइडिया आया एयरबीएनबी को इंडिया में शुरू करने का. एयरबीएनबी एक अमेरिकन कंपनी है जो 2007 से होटल्स और प्लेसेस बुकिंग को इजीली ऑनलाइन करने में हेल्प करती है. रितेश ने इसी आइडिया के साथ ऑरेबल स्टेज कंपनी 2011 में शुरू की थी. तो मेरी कंपनी का नाम अगर आप देखेंगे तो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ और जो कंपनी ने शुरू करी उसका नाम आज भी आप देखेंगे ओरेबल स्टेज लिमिटेड है. तो ओरेबल वाज द फर्स्ट ब्रांड दैट आई स्टार्टेड. जब मेरी कुछ थोड़ी बहुत स्टाइपेंड मिलती थी ना 11वीं और 12वीं में, आई यूज्ड टू गो ट्रैवल. तो उस समय मैं देखता था कि छोटी छोटी अननोन सी प्लेसेस बट वेरी गुड प्लेसेस एट द राइट प्राइस यूज्ड टू बी अवेलेबल, और वो इंटरनेट में अवेलेबल नहीं होती थी. तो मैंने सोचा कि मैं एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बनाऊंगा. नेक्स्ट ईयर 2012 में रितेश की कंपनी अग्रवाल एंटरप्राइज एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम में पार्ट लेती है. And I found about the Thiel Fellowship. I saw there was no Indian resident who was a Thiel Fellow before me, so I was a little disheartened, but I still applied. I thought, apply करके देखते हैं, who knows if it works. Right after my application, in a certain period of time, I got a call saying that you're the top 40 candidates, and we would like you to come to pitch to the United States, to San Francisco. Boss, I went from Raigada to Kota to Mission District in San Francisco. So it was a culture shock of a completely different proportion. और इस तरह थियल फेलोशिप के विनर्स में से एक बने, जिससे कंपनी को $1 लाख की ग्रांट यानी फंडिंग मिल गई थी. फंडिंग के साथ ही रितेश ने ओयो रूम्स नाम से एक कंपनी स्टार्ट की. ओयो रूम्स उस टाइम इंडिया के टूरिज्म प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था. रितेश खुद जब घूमने जाते थे तो वो देखते थे कि होटल्स के प्राइसेस कहीं अफोर्डेबल हैं और कहीं रिडिकुलसली एक्सपेंसिव, और टूरिस्टों का काफ़ी टाइम सिर्फ रहने के लिए स्टे ढूंढने में ही चला जाता था. ओयो रूम्स ने इस चीज़ को ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी आसान कर दिया था. ऑनलाइन होटल्स बुक करने से लेकर ईजिली कैंसिलेशन जैसे फीचर्स को भी ऐड किया गया. हैवी डिमांड्स की वजह से ओयो रूम्स पॉपुलर होने लगे, पर हर बार बिजनेसेस में कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है. ओयो रूम्स ने भी ऐसे ही कई बार कंट्रोवर्सीज और कभी कभी हैवी फाइन्स भी फेस करे हैं. बट डिमांड इज डिमांड. ओयो करंटली इंडिया में 400 सिटीज में फैला इंडिया का बिगेस्ट और ग्लोबली भी 17,000 होटल्स के साथ वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट होटल चेन है. इंडिया के बाद इंटरेस्टिंगली चाइना की 320 सिटीज में 10,000 होटल्स के साथ ओयो रूम्स चाइना का 2nd बिगेस्ट होटल चेन है. मतलब चाइना में ओयो के इंडिया से भी ज़्यादा होटल्स हैं. ओयो रूम्स की करंट वैल्यूएशन कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है. हाँ, बट 2019 में जब रितेश ने $2 बिलियन के शेयर्स वापस बाय किए थे तो ओयो की वैल्यूएशन अराउंड $10 बिलियन एस्टिमेट की गई थी. रितेश की करंट नेटवर्थ अराउंड $2 बिलियन है. It's okay to sacrifice the usual excitements in life for the next few years to do what you want to do. It is okay to take a risk versus being regretful of not doing what you wanted to do. And 30 years later, being at a bar and telling your friends, you see this friend of mine who's done so well in his life,
I could have also been like him if I had taken a risk. You don't want to be regretful like that.